Student, yesterday I taught you about relative pronoun, and it is said it is said that it is used in two methods, that is the restrictive use and that is the continuity use. In restrictive use, relative pronoun comes after its antecedent in adjective clause. But in continuity use, a relative pronoun do not comes after its antecedent, but it confirms it definite the additional information about its subject or its antecedent. कहने का तात्पर्य यह है कि फॉर एग्जाम्पल में देखें कि द मैन हु लिव्ड देयर डाइड यस्टरडे. यहाँ क्या है कि द मैन के साथ एडजेक्टिव क्लॉज में उसके हु अपने एंटीसीडेंट के ठीक बाद आया हुआ है. उसी प्रकार दिस इज द मैन हु हैज स्टोलन माई वॉच. यहाँ भी देखेंगे द मैन के बाद ही हु का प्रयोग किया गया, हैज स्टोलन माई वॉच. मतलब ये क्या है, इस तरह के यूज को हम रेस्ट्रिक्टिव यूज कहते हैं. ठीक अपने नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रयोग किया जाता है. कॉन्टिन्यूटी यूज में क्या है, आई हैव सीन माई फ्रेंड हु रिकॉग्नाइज मी एट वंस. ही हैज बॉट ए कार विच इज वाइट. डिफरेंस क्या हो गया कि यह कॉन्टिन्यूटी यूज एक तरह से कंपाउंड सेंटेंस हुआ और जो रिस्ट्रिक्टिव यूज है एक तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ. नाउ नेक्स्ट रूल ऑन दिस बेसिस, द रूल इज दैट विच का प्रयोग जानवरों तथा निर्जीव समान पदार्थों के लिए नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस में होता है. विच इज यूज्ड ओनली फॉर नॉन लिविंग एंड सम लाइफलेस ऑब्जेक्ट. बट हु, whom, both, who is subject and whom is object, both are used for only living being. Actually you can say this is used, these are used for men. जैसे the man who is standing here is my friend. We worship God who is the creator of the world. This is the girl whom I love. This is the Lord Krishna whom I worship. You can consider that here they are used for a living object. That may be object or subject. But which is used only for non-living. Next rule, this is which का possessive form of which और whose होता है. who और whom का possessive form whose होता है, but which का you can write of which or whose both. For example, a room whose doors are painted looks attractive. या इसको इस तरह से भी, a room of which doors are painted looks attractive. You can use of which or whose. Now next rule, which comes with preposition and this becomes relative adverb. For example, in which time,
on which time, during which time. You can see here on, in, during. These preposition comes with which. In the same way, in which place, at which place, for which reason. Here time, place and region are adverb, and this which has been used for this adverb, these adverb. तो दिस इज वाई इनका प्रयोग हम कह सकते हैं कि एक एडवर्ब के रूप में भी होता है, रिलेटिव एडवर्ब के रूप में भी होता है। जैसे इन विच टाइम मतलब व्हेन, ऑन विच टाइम मतलब व्हेन। उसी प्रकार इन विच प्लेस मतलब वेयर, एट विच प्लेस मतलब वेयर, फॉर विच रीजन मतलब वाई। ये रिलेटिव एडवर्ब को रिफर करता है। रूल नंबर नेक्स्ट, दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में मनुष्य तथा वस्तु दोनों के लिए होता है। जो नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन के रूप में होता है, इसका प्रयोग हु, हुम और विच के बदले में होता है। दैट इज यूज्ड एज ए रिलेटिव प्रोनाउन फॉर मैन एंड नॉन लिविंग थिंग, लाइफलेस ऑब्जेक्ट, in the both form, nominative case and objective case, and that is used at the place of who, whom and which. This is the teacher that taught my student. This is the chair that is read, which is read in mine, is mine. The person that I like most is my father. You can understand here that is used at the place of who, which and whom. Now comma, next rule, comma. We separate relative clause with that, but if we do not use that, we can write comma there. that के बदले में जरूरत के मुताबिक who, whom और which का प्रयोग किया जाता है। जैसे मिस्टर प्रसाद इज अ पॉपुलर लीडर that lives in Patna, but here there is written comma before that. उसी प्रकार मिस्टर प्रसाद इज अ पॉपुलर लीडर हु लिव्स इन पटना, हियर इज आल्सो यूज्ड कॉमा बिफोर हु। दैट के पोसेसिव के रूप में ऑफ दैट का प्रयोग नहीं होता, बल्कि ऑफ विच और हुज का प्रयोग होता है। यानी ऑफ विच, ऑफ हुज नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, दैट का प्रयोग दोनों के लिए होता है। तो दैट का हम ऑफ विच नहीं करेंगे, दैट का पोसेसिव बनाना होगा तो हम विच लिखेंगे, ऑफ विच लिखेंगे, और यदि वो लिविंग ऑब्जेक्ट है तो हम हुज लिखेंगे उसके पोसेसिव के रूप में, लेकिन ऑफ दैट का प्रयोग नहीं होता है। यदि एंड से जुड़कर दो एंटीसीडेंट प्रयोग किए गए हों, इफ देयर इज यूज्ड टू एंटीसीडेंट कंबाइनिंग विथ एंड, तो क्या है कि जिनमें एक मनुष्य तथा दूसरा जानवर या वस्तु है, तो इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही प्रयोग होगा, बिकॉज दैट इज कॉमन, दोनों के लिए यूज हो जाएगा। द मैन एंड हिज डॉग दैट आई सॉ यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड। अब आपने देखा कि मैन और डॉग दोनों के लिए दैट का प्रयोग किया गया। इन द सेम वे एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नोबॉडी, दोज के बाद सामान्यतः हु का प्रयोग होता है। हु के बदले दैट का प्रयोग भी किया जा सकता है, बट विच का प्रयोग नहीं होगा। दे आर कंसिडर्ड अ लिविंग ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन हु हैज विजिटेड द ताज महल लाइक्स इट,
हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हु की जगह पर दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। एवरीवन दैट हैज विजिटेड द ताजमहल लाइक्स इट। एवरीवन हु न्यू हिम लाइक्ड हिम। उसी प्रकार एवरीवन दैट न्यू हिम लाइक्ड हिम। कहने का तात्पर्य कि एवरीवन के साथ हु और दैट दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट का प्रयोग होता है, हु हुम विच का नहीं, हु हुम और विच का नहीं, वहां दैट का ही प्रयोग होगा। इफ देयर इज गिवन सुपरलेटिव डिग्री इन द क्लास। मिस्टर मिश्रा इज द मोस्ट लेबोरियस मैन। द मोस्ट लेबोरियस मैन क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसके बाद अब हु नहीं लगाएंगे, दैट लगाएंगे। दैट आई नो। एवरी स्टूडेंट शुड लर्न केयरफुली। ऑल का प्रयोग व्यक्ति के लिए हो तो इसके बाद हु दैट का प्रयोग होता है, न कि हुम या विच का। ध्यान रखें, ऑल का प्रयोग व्यक्ति के लिए हो तो। ऑल हु दैट आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन डू इट। आपने देखा हु का प्रयोग किया गया। ऑल होम विच आर इंटरेस्टेड टू विच टू डू दिस वर्क कैन डू इट। ये गलत है। यहां होम का प्रयोग ऑल के साथ या विच का प्रयोग ऑल के साथ गलत है। नंबर 13, ऑल का प्रयोग वस्तु के लिए हो तो इसके बाद दैट का प्रयोग होता है। इफ ऑल इज यूज्ड फॉर अ थिंग देयर एज ए रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज यूज्ड। whom not there are used whom, who or which। जैसे all that glitters is not gold, all which glitters is not gold, all that glitters सही है बट all which सही नहीं है। all के साथ that का ही प्रयोग होगा, न who न which न whom का। ऑल के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बाद दैट का ही प्रयोग होता है, चाहे वो नाउन सिंगुलर हो चाहे वो नाउन प्लूरल हो। दूसरे शब्दों में कहें तो ऑल के बाद दैट ही आता है। नाउ नेक्स्ट रूल, एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, मतलब जो भी द प्रोनाउन रिफर्स टू द ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, उनके साथ भी दैट का प्रयोग होता है, हु विच हुम का नहीं। दे कम्स विथ दैट नॉट विथ हुम विच और हुम, विच हु हुम और विच। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल, एवरीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ये क्या है ना कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के रूप में जाने जाते हैं। वर्ब के स्पष्ट रहने पर द सेम के बाद नाउन आता है तो हम दैट का ही प्रयोग करते हैं। जब वर्ब अस्पष्ट हो तो हम एज का प्रयोग कर सकते हैं, तब हमें एज का ही प्रयोग करना पड़ता है। जैसे दिस इज द सेम मैन, यहां इज क्लियर है तो हम दैट का प्रयोग कर दिया। दिस इज द सेम मैन, this is the time and this is the same pen as mine। इज यहां क्लियर नहीं है, इज अस्पष्ट है, इसलिए यहां एज का प्रयोग होगा। लेकिन ऊपर वाले में क्या कहा कि दिस इज द सेम मैन दैट डिसीव्ड मी, वहां पूरा एक क्लॉज क्लियर है। लेकिन इसमें क्या था, एक क्लॉज नहीं क्लियर था, सीधे प्रोनाउन आ गया था, तो एज माइन। नाउ नेक्स्ट रूल, इट के साथ वर्ब बी और उसके साथ प्रॉपर प्रोनाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन हुम या हु का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन दैट के प्रयोग को बेटर माना जाता है। यानी यहां दैट इज बेटर यूज इंस्टेड ऑफ हुम या हु के। इट इज मुकेश हु टीचेज माई चिल्ड्रन, करेक्ट है, बट ये ज्यादा करेक्ट तब होगा इट इज मुकेश दैट टीचेज माई चिल्ड्रन। इट के बाद दैट का प्रयोग ज्यादा सुटेबल होता है। जैसे इट इज मिल्क दैट आई हैव ऑर्डर्ड,
इट इज मिल्क, हु, विच, whom कुछ भी लगाएंगे ये गलत होगा। स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द यूज ऑफ प्रोनाउन with relative pronoun now, and it has been over the time. You will see the video, you will watch the video, you will like, and whatever the systems are given, subscribe also. Okay, thank you, good afternoon.